Hello students, welcome to my YouTube channel. This video is for the students who are not good in maths and also for those who want to score good marks, more than 90 marks or 100 marks in maths. So this video will be really helpful for all of you. So the first question which comes in mind is what is the proper way of study, from where to start, जिन्होंने अभी तक start नहीं किया है, and how to be motivated, which is most important while you are preparing for your exam. So it will be helpful for all the students. So the first most important thing is NCERT. First of all, you have to cover your topics, your basics from the NCERT. It's each and every question, each and every concept should be clear to you. You need not mug up the questions, try to understand the questions, try to practice the questions, including solved examples. All the questions from your back exercises as well as solved examples. Once the concepts are clear from NCERT, then your second step is to move to NCERT Exampler. Both NCERT and NCERT Examplers are important. When you are done with NCERT Exampler also, then move to the previous year questions. Previous year questions will give you the idea about the questions which can be framed from the topics which you have covered from your NCERT and NCERT Exampler. After doing these first three steps, your almost 90% preparation is done. Then the sample papers practice is important for time management, and कुछ students confuse होते हैं when they see all the chapters together. So sample papers will be helpful for those students. You just do the questions in the given time frame, like 3 hours का पेपर है, आप बैठ के उसको 3 hours में solve करने की practice करो. You will get to know your speed, your time management, and whether you are facing any sort of stress or something, right? So it will be helpful for you. Then if you are done with these 4 things, you can move to the reference books like R.D. Sharma or R.S. Agarwal. It is completely optional, and this is actually fifth point. This is for the students who want to score above 90 and they are done with all these 4 steps which I have mentioned here. So fifth step is completely optional. If you are done with first 4 steps, you can score 90 to 95 marks also, right? So reference books are for more clarity. Otherwise you can go with first 4 steps also. Now the most important thing is how to overcome this exam phobia. कुछ students को क्या what they face while they are doing the exam, कि उनको आता सब कुछ है but पेपर में जाके भूल गए, या पेपर देख के भी लग रहा था कि पेपर अच्छा हो जाएगा बट जब उसको सॉल्व करने लगे क्वेश्चंस को तो कुछ मिस्टेक्स हो गई, जिस वजह से क्वेश्चंस पूरे सॉल्व नहीं हो पाए. कोई भी क्वेश्चन का आंसर कम्प्लीटली नहीं आ पाया, या कुछ क्वेश्चंस का आया कुछ का नहीं आया. सो फॉर दैट हाउ यू कैन अवॉइड दैट थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि विच टॉपिक होल्ड्स व्हाट वेटेज इन द पेपर. मे बी आपने 1-2 टॉपिक स्किप करें तो आपको पता होना चाहिए कि वो टॉपिक्स कितने मार्क्स के आने वाले हैं, या जो टॉपिक्स आपने प्रिपेयर किए हैं उनकी पेपर में क्या वेटेज है. देन यू रीड योर क्वेश्चन पेपर थॉरली, और उस सेक्शन को या उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करो जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो. सो रीड द क्वेश्चन पेपर थॉरली. इससे आपको ऑप्शंस का पता लगेगा कि इन क्वेश्चंस में ऑप्शन है, कहाँ से पेपर को स्टार्ट करना है. नेक्स्ट इज टू रीड द क्वेश्चन, राइट द गिवन वैल्यूज एंड रिलेट इट विद व्हाट इज टू फाइंड. सपोज आपका एपी का क्वेश्चन है, आपको an की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू गिवन है, d गिवन है, एंड क्वेश्चन इज टू फाइंड n. सो जस्ट राइट द गिवन थिंग्स. टू फाइंड जो है वो लिखिए और रिलेट करिए उनको कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो इन 2 चीज़ों को रिलेट करेगा. रिमेंबर दैट फॉर्मूला एंड सॉल्व द क्वेश्चन. नेक्स्ट इज योर टिप्स फॉर फाइनल रिविजन बिफोर एग्जाम. आपको क्या करना है, आपने NCERT से सारे टॉपिक्स प्रिपेयर कर लिए हैं. यू जस्ट प्रिपेयर अ चैप्टर वाइज फार्मूला लिस्ट फॉर योर क्विक रीकैप, ताकि आपको बुक दोबारा ना उठानी पड़े. तो you can prepare that chapter wise formula list. Then giving tests in a time limit is important to reduce fear and for time management during exam, right? So आपके पेपर से कुछ दिन पहले या 1 month पहले you can start giving tests in the particular time limit, जिससे 3 hours में आपका पेपर complete होना चाहिए. 1.5 hour में आपका 40 marks का पेपर हो जाना चाहिए. So giving tests will give you confidence also,
एंड इट विल हेल्प यू विद योर टाइम मैनेजमेंट और आपका फियर भी कम होगा एग्जाम को लेके। जितने पेपर्स आप दोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, वो पेपर आपके लिए न्यू नहीं रहेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू बी कॉन्फिडेंट। नाउ हेयर इज रूल ऑफ 10। रूल ऑफ 10 इज 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पेपर करते टाइम माइंड में रखने हैं, या पेपर से पहले क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज अटेम्प्ट द क्वेश्चंस विद मोर वेटेज फर्स्ट। व्हाई? सपोज आपका कुछ क्वेश्चंस छूट रहे हैं पेपर में, एंड में टाइम कंप्लीट होने वाला है, तो एटलीस्ट आपके वो क्वेश्चंस रह जाएंगे जिनकी वेटेज पेपर में कम है, और आपने फुल डिवोशन के साथ स्टार्टिंग में जब आपने पेपर स्टार्ट किया तो आपने पूरा उन चीज़ों को फोकस करा जिनकी वेटेज ज़्यादा थी, उनमें आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी आई। बिकॉज इन द एंड ऑफ द पेपर जब आप लास्ट तक पहुंचते हैं पेपर में, तब आपका माइंड उतना फोकस नहीं हो पाता जितना बिगिनिंग ऑफ द पेपर में होता है। Second is to focus on NCERT and previous year questions. Revise whatever you have done earlier. Don't do anything new. पेपर से जब पेपर में हॉलीडेज हैं, 3-4 डेज की हैं या 1 वीक की हैं, जैसे भी हॉलीडेज हैं, तब आपने ये नहीं देखना है कि आपका फ्रेंड कहाँ से प्रिपेयर कर रहा है या आपका क्या छूट गया है। Forget everything, जो छूट गया है छूट गया है। अब आपने जो किया है उसको रिवाइज करिए, ताकि नया कुछ करने के लिए आप पुराना जो आपने प्रिपेयर किया हुआ है आप उसको खराब ना करें। सो रिवाइज वॉट एवर यू हैव डन अर्लियर, कुछ न्यू नहीं करना है। थर्ड पॉइंट इज टू यूटिलाइज योर रीडिंग टाइम इन सिलेक्टिंग क्वेश्चंस, हैविंग चॉइस एंड डिसाइडिंग विच सेक्शन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट फर्स्ट। जब आपको पेपर मिला तो नॉर्मली पेपर में 15 मिनट्स आपको मिलते हैं पेपर रीड करने के लिए, तो उस टाइम आप पेपर थॉरली रीड करिए। आप डिसाइड करिए कि जिन क्वेश्चंस में चॉइस हैं उसमें से आपको कौन सा क्वेश्चन करना है अटेम्प्ट, और कौन सा सेक्शन आप पहले स्टार्ट करेंगे, किस सेक्शन में आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस उस सेक्शन के स्टार्ट होंगे। इट विल हेल्प यू इन इंक्रीजिंग योर स्पीड ऑल्सो, एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग योर एग्जाम इफ यू आर स्टार्टिंग विद दैट सेक्शन। फोर्थ पॉइंट इज दैट डोंट गेट स्टक ऑन अ क्वेश्चन। आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करा, आपसे नहीं हुआ, लीव दैट क्वेश्चन फॉर द टाइमिंग। उसको बार बार चेक मत करिए, उसको रीसॉल्व उस टाइम के लिए मत करिए। You move to the next question, do the paper, in the end come back to that question, look for your mistake or resolve that question. Then next is after half time check whether you have attempted your paper of 40 marks. It will help you in increasing your speed और आपका पेपर छूटने के chances कम हो जाते हैं। Next is to solve the questions step wise, don't skip the steps, क्योंकि पेपर में स्टेप मार्किंग होती है, तो अगर आपके किसी क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होती है लास्ट स्टेप पे, सेकंड लास्ट स्टेप पे, थर्ड लास्ट स्टेप पे, तो एटलीस्ट जितने स्टेप्स आपके बिगिनिंग से ठीक है, यू विल गेट द क्रेडिट फॉर दोज स्टेप्स। सेवेंथ पॉइंट इज टू राइट द फाइनल आंसर इन बॉक्स। अब फाइनल आंसर को बॉक्स में हाईलाइट करेंगे, इट विल बी इजी फॉर द चेकर ऑल्सो। देन एट्थ इज टू यूटिलाइज योर रीडिंग टाइम इन रीडिंग द क्वेश्चंस कंप्लीटली। आप क्वेश्चंस को प्रॉपरली रीड करेंगे। कई बार एक क्वेश्चन में 2 पार्ट्स भी होते हैं, स्टूडेंट्स एक पार्ट अटेम्प्ट करके छोड़ देते हैं, सेकंड पार्ट स्किप कर देते हैं। अगर आपने क्वेश्चन पेपर थॉरली स्टार्टिंग में ही पढ़ा है तो एटलीस्ट आपके बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी थी, राइट। देन नाइन्थ इज डोंट लीव एनी क्वेश्चन इन द पेपर। आपको सपोज कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपने ट्राई करा, नहीं हुआ आपसे, व्हाट यू कैन डू फॉर दैट क्वेश्चन इज आप रिलेट करिए उसको कि आपके कौन से चैप्टर का वो क्वेश्चन हो सकता है, उस चैप्टर के कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड वो क्वेश्चन लग रहा है, तो एटलीस्ट राइट द फॉर्मूला विच कैन बी यूज इन दैट क्वेश्चन। 10th इज टू रिवाइज द फॉर्मूलाज। जो आपने चैप्टर वाइज लिस्ट प्रिपेयर करी थी तो आप उसको रिवाइज करके जाइए। नेक्स्ट इज योर कोर्स स्ट्रक्चर फॉर क्लास 10। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्ट्रैटेजी फॉर योर एग्जाम। आप जो चैप्टर्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो क्या वेटेज पेपर में होल्ड करते हैं, या जो चैप्टर्स आपने प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है तो आपका कितने मार्क्स का पेपर प्रिपेयर हो जाता है उससे। There are 7 units in your 10th class exam. First is number system, which holds 6 marks weightage, algebra 20 marks, coordinate geometry 6 marks, geometry 15 marks, trigono 12 marks, mensuration 10 marks, stats and probability 11 marks. Now in each unit, in some units there is only 1 chapter, in some 2, 3 and 4 chapters are also there. So most important unit you can see here is geometry, which holds the maximum weightage 15 marks. And algebra also, which holds 20 marks weightage. So let's see what topics we are going to cover up in algebra and geometry also.
So in algebra there will be 4 topics: polynomials, pair of linear equations in 2 variables, quadratic equations, and arithmetic progression. So these 4 chapters will give you 20 marks in total. If you are preparing these 4 chapters, so 20 marks paper you have prepared out of 80 marks. Next unit is geometry. Geometry is having 2 chapters: triangles and circles. Next is trigonometry. It is also having 2 chapters: introduction to trigonometry and applications of trigonometry. Then next is mensuration. Mensuration में भी 2 topics हैं: area related to circle and surface area and volume. So this is all for your course structure of class 10, and now in my coming videos I'll be giving you chapter wise clue, like which questions for which topics are important, कौन सी types को आपने ज़्यादा focus करना है किस chapter में से, and also I'll be giving you the solution for the CBSE sample paper basic and standard, which is released by CBSE. So I suggest basic as well as standard math students to keep your strategy same. बेसिक मैथ्स वाले स्टूडेंट्स ये ना सोचें कि हम कुछ एक्स्ट्रा ना करें। अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी सेम रखते हैं एज द सिलेबस इज सेम, क्योंकि समटाइम्स बेसिक मैथ्स स्टूडेंट्स सी दैट बेसिक मैथ्स का पेपर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड मैथ्स, ठीक है। तो उसके लिए यही है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी सेम रखिए, यू प्रिपेयर फॉर स्टैंडर्ड लेवल एंड ऑब्वियसली यू विल फाइंड द बेसिक मैथ्स पेपर ईजी फॉर यू. सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.